आपसे शुरू करना चाहती थी, कई दफा आपने ये कहा है कि लाइक हाउ योर फादर वाज अ one of the strongest influence in your life, right? And Yeah. this film is somewhere the reflection of that as well, the Yeah. strong support, right? Tell me, when finally you watch the film, like I'm not talking about the initial stage of and the concept of the story, but finally when you watch the film, what was the first memory that was coming back? The first thing I felt was I started crying and felt that this would have made my father so happy. That was the first thing that came to my mind. And then a film ran in my head of all the times that my father supported me. I'll tell you an incident when I was I was a bit hesitant, and I told him finally that Abba, मैं acting करना चाहती हूँ, तो आप मुझे support करेंगे? तो he said, बेटे, I'll support you in whatever you do. अगर कल को आप मोची बनना चाहेंगे, मैं उसको भी support करूँगा, provided you tell yourself कि तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन मोची बनोगी, क्योंकि काम अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता, आप कितनी लगन और कितनी सच्चाई से उसे करते हैं, ये जरूरी बात है. So for me, there was a parallel between the kind of support that he gave and the kind of support that Salim continues to give his daughter. That, you talked about, Arundhati, you talked about 2 or 3 very beautiful dialogue. But one of them that touches me deeply is the challenge for Salim, really, is because his wife dies so early in the film, is to become both father and mother. It's not easy to become father and mother to a 15-year-old child. There are different stages of feminism that he has to deal with, Yes. femininity. Yes. Yeah? And Yes. then Yes. just before her performance, she's getting ready and he starts putting alta on her feet. And she says, no, don't do it. And he says so simply, कि अगर माँ होती तो तुम रोकती. वो मुझे इतना मेरे दिल को छूता है, क्योंकि he is playing the mother as well as the father to this child. आमतौर पे क्या होता है कि I think women are better equipped to play father and mother. Fathers are equipped to play fathers to sons, but to play mother to daughter is an emotion that they have to tap within themselves, which is not so much part of who they are. That is the beauty of that relationship. No, so that's so wonderfully put. That is so true. That is so true. I mean, there is a different bonding that we always talk about between father and daughter, but in this one, he was really like supporting his daughter like a mother as well as like a father. That's right. He is. So that's interesting. One point, आजकल क्या हो रहा है कि हमारे माहौल में एक बहुत टॉक्सिसिटी हो रही है मैस्कुलिनिटी को लेकर. Masculine means toxic. It means flexing your muscles. It means about wielding power on the powerless. It's a toxic masculinity that we are seeing in society. What we really need is for men. We want women to change, but we want men to change also. We want them to redefine the notion of masculinity. Why is masculinity not about tenderness, about empathy, about support, and everything that you want in a new man as you speak today is there right in front of you in the portrayal of Salim, the way it's been written and the way it's being played. So now when the film is out there, and the process of it, when you went through, how was it like? See, एक तो बहुत पहले कैफी साहब के साथ में बैठा हुआ चाय पी रहा था मिजवा में, and there he just expressed his desire that I shoot a film in Mijwa if it was possible. तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि बेटे क्या ये पॉसिबल है कि हम आप
कभी मिजवा में फिल्म बनाए, यहाँ शूटिंग कर सकें। तो उस वक्त ये बहुत पहले की बात है, उस वक्त थोड़ा मुझे मुश्किल जरूर लगा था, बिकॉज मिजवा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेरी टाइनी स्मॉल प्लेस जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता एक फिल्म शूटिंग के लिए। तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैं मुस्कुरा दिया ऐसे ही कि अब्बा को तो मिजवा में हर चीज चाहिए, यू नो। तो बट ये सब्जेक्ट जो मुझे मिला, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये एक ऐसी फिल्म है और ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं बनाऊं तो मिजवा में ही बनाऊं। कैफी साहब का सेंटेनरी ईयर चल रहा था, हाँ, तो सेंटेनरी ईयर चल रहा था, और फिर मैंने कहा एज अ ट्रिब्यूट, दिस इज व्हाट माय फादर हैड वंस asked you, हाँ, is it possible that you can shoot a film in my village? तो क्या होता क्या है एक्चुअली, फिल्म शूटिंग जब जाती है तो उसका एक प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, एंड कई लोग होते हैं, 70-80 लोग होते हैं, उनका अकोमोडेशन, ये सारी चीजें। तो द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर विच अ सिटी कैन प्रोवाइड, अ स्मॉल टाइनी विलेज के लिए बहुत इम्पॉसिबल था। बट मुझे बहुत खुशी है ये कहने में, और मैं बार बार कहता हूँ कि वंस आई वेंट देयर and I was started looking for places, you know, boarding, lodging for people. थोड़े शुरू में दिक्कतें हुई, कोई 2 कमरे कहीं मिले, 2 कमरे कहीं और मिले, but I wanted that the whole unit stays together so that they travel, they can be on location on time, kind of thing. And just achanak out of the blue I discovered one building which was just constructed, new building, and I went there and मैंने वहाँ check किया तो पूरी खाली थी building, so बहुत आसानी से हमको मिल गया। तो ऐसे इस तरह से हर चीज, यू नो, जो रिक्वायर्ड होता है एक प्रोडक्शन के लिए, वो धीरे 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 अपने आप सॉल्व होने लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज माय फादर्स ब्लेसिंग, ही वाज देयर विद मी एंड ही वाज सीइंग दैट हर चीज मिल जाए बाबा को, जो उसके लिए रिक्वायर्ड है फिल्म के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम देख सकते हैं लाइक कितना, लाइक यू नो, how the productions come about like that. We can see, like, you know, in the film we definitely can see that, and it's, again I'm saying it again and again, probably abhi like 5 minute pehle film khatam kiya hai, isliye wo asar hai mere andar. It's such a lovely story, such a lovely story. Now I want to come to Danish Saab, that tell me, I mean, the character that you played is like it could be like a dream for any actor for that matter. I mean, it's such a exciting role, right? So what was your point of interest to be part of the story? भाई मेरा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो ये था कि बाबा ने मेरे ऊपर बिल्कुल अंधविश्वास किया, बिल्कुल ना बगैर कोई मेरा काम देखे हुए, और इतना एतमाद और यकीन मेरे ऊपर रखना कि यही आदमी ये रोल कर सकता है। मुझे तो मैं इस पर ही इतना फिदा हो गया कि भाई जो आदमी आप पे इतना यकीन करे, उसका यकीन तो बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए। और दूसरा, बाबा लेजेंडरी आदमी है। हम लोग तो मैं तो भाई बहुत लेट अपनी उम्र में आया फिल्म करने, एक्टिंग करने। हम तो जब बचपन में थे, जवानी में थे, तो बाबा का नाम आता था, कैमरा डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बाबा आजमी। तो हमारे लिए तो भाई बहुत बड़ी शख्सियत थे, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में देखी हमने। तो ये बहुत ज़्यादा था हमारे लिए कि बाबा के साथ काम करने को मिलेगा। और दूसरा, जब बाबा ने मुझे स्क्रिप्ट दी और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि ये बिल्कुल ड्रीम रोल है एक एक्टर के लिए। हर एक्टर चाहता है कि भाई उसको कोई एक ऐसा किरदार मिले जो एक इम्पैक्ट छोड़े ऑडियंसेस के ऊपर, जो लोग देर तक याद रखें, उसकी अदाकारी भी और उस किरदार को भी। और वो दोनों चीजें इस किरदार में थी कि जिस तरह का वो कैरेक्टर था, और जैसे कि अभी शबाना जी ने कहा कि the masculine toxicity is increasing so much. This was such an antidote to that, ये कैरेक्टर सलीम का, कि वो जो आज के जमाने में जो टॉक्सिसिटी फैल रही है उसका बिल्कुल तोड़ जिसे कहते हैं, वो सलीम का कैरेक्टर था। तो इस तरह का कैरेक्टर मिलना अपने आप में किसी एक्टर के लिए, इसे कहते हैं, इट्स ग्रेट फॉर्च्यून फॉर दैट एक्टर। So there was no way I was going to let
go of this role when Baba offered me. This फिर opportunity. जब स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया और फिर जब बाबा के साथ डिस्कशंस हुए और काफी हद तक बाबा और मैं इत्तेफाक रखते थे कि उस कैरेक्टर को कैसे प्ले आउट किया जाए, और हम दोनों ने एक दिन बरजस्ता एक कॉन्वर्सेशन में बोला कि काफी इसमें बलराज साहनी की गर्म हवा में जो झलक है वो आती है। तो हमने जो है वो उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और ये बाबा का पेशेंस है कि उनको बहुत ही गैर माकूल लोगों के साथ डील करना पड़ा सेट के ऊपर, और बड़े धैर्य के साथ उन्होंने किया। अभी मैं the main conflict, right? Like, the first thing that the and the religion, these two things were coming in between the art form that is Bharatanatyam, right? In the story, if I just mota upar se dekhu to, and it is so interesting, like, everywhere how this father and daughter was trying to break that, right? And in the end of it, it is proven that even through the song of the last performance, it is proven that how the art and artist should not have any religion, right? मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगी कि how do you think the kind of time that we are living in, the socio-political time that we are living in, where on one hand we are talking about unity and diversity, and on the other hand somewhere we are questioning on our Ganga Yamuna Tehzeeb. Yeah, how do you look at the whole situation, and what do you think? What should be the role of art and artists under this situation? I was raised to believe that art should be an instrument for social change, because all arts have the possibility of creating a climate of sensitivity in which it is possible for change to occur. कला का मतलब ही ये है कि वो दिलों को जोड़े, ना कि वो दिलों को तोड़े, क्योंकि कला की कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए, और कला का बेसिक मकसद है लोगों को जोड़ने का। और आज के मौके में भी जब इतनी सारी कड़वाहट हम देख ही रहे हैं, मगर ये लॉकडाउन में हम क्या देखते हैं कि फाइनली लोगों को सॉलिस कहाँ से मिली है? आर्ट से ही मिली ना। दे आर वाचिंग फिल्म्स, दे आर लिसनिंग टू स्टोरीज, दे आर रीडिंग स्टोरीज, दे आर वाचिंग एवरीथिंग ऑनलाइन, एंड इट इज दैट वर्ल्ड ऑफ द आर्ट that is softening the edges of the pain that people are feeling. So when your very mandate is that, then all you can do is give to the world a reflection whereby they understand, I've lost you. Religion एक चीज होती है अरुंधति, culture एक अलग चीज होती है। तो to believe that all religious communities are monolithic, ये एक fallacy है। जैसे कि एक यूपी का मुसलमान बंगाल के मुसलमान से मुख्तलिफ है, एक बंगाल का मुसलमान तमिलनाडु के मुसलमान से मुख्तलिफ है, एक तमिलनाडु का मुसलमान जो है वो केरला के मुसलमान से मुख्तलिफ है, जो इराक के मुसलमान से मुख्तलिफ है, और जो कश्मीर के मुसलमान से मुख्तलिफ है। लेकिन इन सबका रिलीजन एक हो सकता है, पर इनकी कल्चर अलग अलग है। तो जो यूपी का मुसलमान है, अब मैं यूपी से हूँ, मैं जो मेरा कल्चर है वो यूपी के हिंदू के ज्यादा नजदीक है बनिस्बत एक कश्मीर के मुसलमान के या एक बंगाल के मुसलमान के। तो ये एक मोनोलिथिक कम्युनिटी को सोचना और सोचना कि सब एक जैसे होंगे, ये एक फैलेसी है। और आर्ट जो है वो कल्चर से उसका ताल्लुक है। आर्ट का कल्चर मजहब से नहीं है, आर्ट का ताल्लुक कल्चर से है। तो आर्टिस्ट जिस माहौल से आ रहा है, जिस कल्चर से आ रहा है, वो उसी कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। और इसीलिए है कि आर्ट का कोई मजहब नहीं, जिसको आर्ट अपील करेगा और वो उस आर्ट फॉर्म को अपनाएगा, आर्ट उसका हो जाएगा। जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये मतलब मेरा जो सवाल आया या मेरा जो सोच आया वो सिर्फ इस बात से नहीं है, पता है सर। इस कारण भी है क्योंकि कई दफा ऐसा भी होता है। सो फॉर इंस्टेंस इफ वी जस्ट टॉक अबाउट भरतनाट्यम, राइट, ऑल द माइथोलॉजी, yeah, all the mythology of that particular dance form is revolving around Hindu god and goddess and their story, those mythological story that I'm talking about, sir. So that is happening because of that. So like जो connection जो बैठता है ना सर, या फिर I
remember once Wahida Rahman's interview, one of the Wahida Rahman's interview that I was listening, where she was a little girl and she performed at a art and culture event over there, and she was her father was told कि like अरे मतलब आपकी बेटी ऐसे डांस कर रही है, भरतनाट्यम कर रही है, ये तो हिंदुओं का डांस है। तो उनको कहा गया था कि तो उन आर्ट फॉर्म है और आर्टिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। Probably coming from which community practice a particular art form more? I mean, do you think there the whole thought process comes from there? I mean, I'm asking all of you. भरतनाट्यम का ओरिजिन इस कल्चर में हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसके जो इन्फ्लुएंसेस होंगे वो यही होंगे। अब ध्रुव संगारी बहुत शानदार कव्वाल सिंगर, लेकिन कव्वाली तो हिंदू माइथोलॉजी से नहीं आ रही है ना, कव्वाली तो अमीर खुसरो और सूफी ट्रेडिशन से आ रही है, लेकिन ध्रुव संगारी जो है वो बहुत शानदार कव्वाल है। तो अब ये कहना कि ये तो इसमें तो सब इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस हैं, ध्रुव संगारी कैसे अच्छा गा सकते हैं कव्वाली, उसका कोई लॉजिक नहीं है ना। ध्रुव संगारी को कव्वाली अच्छी लगी, उन्होंने जाके रियाज किया, सीखा, उस्ताद के पास गए, आज वो एक शानदार कव्वाल है हिंदुस्तान के। तो ये यही चीज है, बैरियर्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर किसी को कोई आर्ट फॉर्म अच्छा लग रहा है, जाहिर सी बात है उस आर्ट फॉर्म का ओरिजिन, अब कव्वाली का ओरिजिन तो सूफी है ना, अमीर खुसरो ने किया है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो है इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस ही आएंगे। तो इसी तरह भरतनाट्यम का जो ओरिजिन है वो हिंदू माइथोलॉजी में है, तो उसमें इन्फ्लुएंसेस वही आएंगे। लेकिन कोई आर्ट ना चाहे तो उसके लिए बैरियर नहीं होना चाहिए। And I feel that art should know no boundaries, and mythology becomes a very important part of our culture. In the Western societies today, even Greek mythology shapes the ideas of heroes and heroines. In our own culture, our ideas of hero and heroines come from our basic mythologies. So, उसको आप अपनी अगर माइथोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं या उसका एक हिस्सा करते हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके इतने सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं, इतने सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं। We are trying to build a construct that there is only one interpretation of our mythology, which is not true. And for me, again and again, I will emphasize that to me, Indianness is basically inclusiveness. Inclusiveness, and that inclusiveness makes us celebrate all our diversities. And again, I'll say that we are like a bouquet of flowers in which there are different colors and different fragrances, but when they come together, then they contribute to this beautiful fragrance. मुझे आर्ट को किसी भी मजहब से जोड़ने के हक में मैं नहीं हूँ। आर्ट एक अपने आप में एक अलग मजहब है, एक अपने कल्चर का हिस्सा है, और मजहब आपका पर्सनल है। आप एक मजहब में पैदा हुए हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, और उसमें ये चीजें ना जोड़े तो ज्यादा मुझे मतलब मेरी थिंकिंग वो है। आज अगर आप जाकिर हुसैन को देखें या कोई भी म्यूजिशियन को देखें, जब वो स्टेज पे जाते हैं तो स्टेज को छूते हैं। ये अपना जब तबला लेके वो बैठते हैं जाकिर हुसैन, तो वो टच करते हैं, अपने सलाम करते हैं उसको। ये कोई भी मजहब का ताल्लुक नहीं है, ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है इसमें। सो आई लाइक दीज थिंग्स, यू नो, कि जहां कोई भी आर्ट फॉर्म को आप ले लो, उसमें रिलीजन को मत जोड़ो। ये बस मेरा कहना ये है। और एक 10 साल की बच्ची अगर भरतनाट्यम कर रही है और वो एक मुस्लिम घर में पैदा हुई, तो मतलब उसने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा कुछ, उसको शायद वो जो कपड़े पहनते हैं भरतनाट्यम के, वो कलरफुल चीजें अट्रैक्ट की होंगी। मजहब का कोई लेना देना नहीं है। एंड दैट्स हाउ यू जस्ट काइंड ऑफ गेट इनटू दैट, यू नो, एज अ चाइल्ड। आप 10-12 साल के आपको कोई एक्सपोजर मिला, तो इट्स वेरी नेचुरल दैट आपको अगर उसका शौक हुआ तो सीख लो। इट्स नथिंग टू डू विद मजहब। हाँ, मैं एग्री ही नहीं करता इस बात, ये सिर्फ हिंदू का होना चाहिए या सिर्फ मुसलमान का होना चाहिए। मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, ये सवाल जो है उस वक्त से आ रहा है जबकि अभी आपने खुद कहा था कि वहीदा रहमान जी के अब्बा से ये बात पूछी गई थी
पूछा इस गया बात था। को अब तकरीबन 60 साल होने को आए हैं, 60 साल बाद हम फिर ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन कामयाबी कहाँ आप देखते हैं? देखिए, एक सोच है कि मौसीकी जो है ममनून है इस्लाम में। अगर ऐसा ही होता, वो इंटरप्रिटेशन क्या है? तो आप मुझे बताइए कि बिस्मिल्लाह खान जिस तरह की शहनाई बजा देते, या अली अकबर खान, या अल्लाह रखा जी, या कितने ही लोगों का आप नाम ले लीजिए, उनको कितनी कामयाबी मिली है। तो उनको कामयाबी इसलिए मिली है कि उन्होंने अपनी कला से इस क्वेश्चन को ही रिडंडेंट कर दिया है। और हमको एक खूबसूरत समाज बनाना है, तो हमको इस तरह के जो कट्टरपंथी सवाल हैं उनको रिडंडेंट बनाना, मुझे लगता है कि कला का एक बहुत बड़ा काम है।